Hi, I'm Dr. Tanu. It's a very special podcast today on women health. The podcast is by P-Chex brand, and we have a very special guest today, Dr. Aishwarya. She needs no introduction. She's heading a unit at Asian Hospital, Faridabad, and she really takes a lot of effort in women health, their diet, their pregnancy, menopause, and lot more. Let's hear it from Dr. Aishwarya now. Thank you. Thank you so much for inviting me, Dr. Tanu. तो डॉक्टर ऐश्वर्या मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है आपसे आजकल एवरीबॉडी इज गेटिंग मैरिड वेरी लेट इन देयर 30s मोस्टली एंड देन द प्रेगनेंसी विल हैपन देयर आफ्टर सो व्हाट डू यू थिंक इट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी क्या उनकी फर्टिलिटी पे इस पर कोई बहुत बड़ा इफेक्ट है It's a very nice question, Dr. Tanu. First thing I would like to say, women empowerment is required these days. Women need to be educated before they plan their pregnancy, before they plan their family. So it's very good thing that they're getting married after they're educated and everything. So after they're settled. Yeah, after they're settled. Yeah. So they're more educated about raising a child. They're more educated about family behavior. So when we talk about fertility, the age that is defined for having a bad fertility, I'll say, will be 35. So after 35, yes, the face also ages, the body also ages, the inside body also ages. So after that, yes, you have certain kind of complication to the mother and the baby, but not all of them. If you are under proper guidance with a gynecologist, she can guide you better. So you say women empowerment is important and they're getting married after 30s. So gynecologists can take care of them for planning the fertility. So women in India are actually changing. They're actually more and more aspiring. They're more ambitious about their dreams. And for that matter, you're always right about this. A gynecologist can actually guide them. So ठीक है, अब fertility से हम लोग next pregnancy पे आते हैं. So pregnancy में what do you feel is the perfect weight gain? क्या weight gain होना चाहिए for a proper healthy baby? What do you suggest? क्या नंबर है या हम किस बारे में बात कर सकते हैं? You know, pregnancy के पहले pre-conceptional counseling बहुत जरूरी है. It's not always about pregnancy. With the advanced age, there are advanced complications also like obesity, thyroid, sugar. Even women, educated women, if I talk about, they don't get themselves checked. So what I always say, please get yourself pre-conceptional counseling ताकि आपके पहले काउंसलिंग हो, ताकि अपने वेट को आप पहले चेक करके रख सको, आप अपने BMI को पहले कंट्रोल करके रख सको, अपने शुगर, थायराइड, बेसिक इन्वेस्टिगेशन पहले से लेना शुरू करो. आफ्टर गेटिंग प्रेग्नेंट आप चीजों को कंट्रोल करना मुश्किल होगा. आपको जो करना आप पहले करो ताकि आप पहले प्रॉपर BMI में आओ, उसके बाद आपका वेट गेन मैटर करता है. Again in pregnancy, different BMI has a different category of weight gain. Like अगर आप obese हो तो आपको सिर्फ 5 से 7 किलो ही allowed है. अगर आप पतले हो तो आप you can gain up to 10 kgs, 11 kgs, 12 kgs. So pre-pregnancy counseling is very much required to everybody who's getting pregnant after or before 30 years of age. So women in India, please listen to this. You need to have a preconceptional pregnancy. Counseling. You have to counseling. So आप कहती हो कि प्रेगनेंसी में जो वेट गेन है वो डिपेंडेंट है आपकी प्री प्रेगनेंसी वेट. सो बेसिकली डॉक्टर ऐश्वर्या ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है. प्री कंसेप्शन काउंसलिंग बहुत जरूरी है विद गायनेकोलॉजिस्ट, वेयरइन आपको क्या सप्लीमेंट लेने हैं, क्या डाइट फॉलो करनी है, क्या वेट देखना है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आउटकम ऑफ द प्रेगनेंसी. नहीं तो डायबिटीज से लेके, कैन यू टेल मी व्हाट ऑल कैन हैपन? I think you can tell better about diabetes. Yeah, I'm a physician. You have been handling it since ages. And you tell me more about sugar management and the diabetes. So basically, diabetes is the most important factor here when we talk about the weight gain. So weight gain अगर आपने बहुत ज़्यादा कर लिया या genetics आपके ऐसे हैं, you may land up in a gestational diabetes mellitus, yes, which will hamper your quality of pregnancy and your baby, and it's going to result in a lot of problems. And you know, India में women stay in ignorance. शुगर है, मान लीजिए आपने अपना ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट कराया, अगर आपको शुगर 140 से ऊपर है, एक्सेप्टेंस ही नहीं है. नहीं मैम, मैंने ना पहले दही खा लिया था मैम, मैंने वो मीठा खा लिया था मैम, मैंने वो चॉकलेट खा लिया था. So you need to understand that you need to accept your problem, you need to accept and then you will work on it. अगर आप में एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, आप उस पर काम ही नहीं करेंगी, वो चीज ट्रीट ही नहीं होगी. सेकेंड थिंग, जब भी आपको शुगर आए, दैट मीन्स जब भी आपको जेस्टेशनल डायबिटीज आए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, you have to listen to your doctor about the diet, about the medicine she prescribes. And the exercise, you can exercise in pregnancy. Can Yes. we have a light on this? You need to exercise any time because आपकी बॉडी तभी चलती है जब आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा होता है. उस ब्लड फ्लो के लिए आपको एक्सरसाइज जरूरत है. When I say एक्सरसाइज मतलब बाथरूम से बेड तक इज नॉट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज मीन्स आपको मॉर्निंग वॉक करनी है, आपको इवनिंग वॉक करना है, आपको अपने बॉडी को फिट रखना है. इतना फिट रखना है कि अपने बेडरूम का स्विच आप खुद उठ के बंद कर सके या खुद उठ के ऑन कर सके. नहीं डॉक्टर ऐश्वर्या, मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी में व्हाट इज द सेफ एक्सरसाइज? कैन यू टेल मी?
Most of the exercises are safe exercises in pregnancy. Pregnancy is not a disease. पहले अपने दिमाग से आप निकाल दो कि कोई बीमारी है. It's a normal phenomena that most of the women go through. और प्रेगनेंसी में बेबी बहुत स्ट्रॉन्ग कवच के अंदर रखता है. भगवान ने यूट्रस इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्गन बनाया है, किसी एक्सरसाइज से वो आपका प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको वेट ट्रेनिंग भी अगर आप कर रहे हो तो आप अंडर गाइडेंस करो. वो आपको 30 किलो अलाउ नहीं करेगा, 10 किलो, 5 किलो. अगर आप सर नीचे पैर ऊपर वाली एक्सरसाइज, स्विमिंग, ये सारी चीजें सेफ है. एवरीथिंग इज सेफ बट अंडर गाइडेंस. आप यूट्यूब देख के ये चीजें नहीं कर सकते हैं. आपको डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट और अपने एक्सरसाइज पर्सनल ट्रेनर के अंडर गाइडेंस ही करना पड़ेगा. तो डॉक्टर ऐश्वर्या, मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछनी है. प्रेगनेंसी में क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट बेसिकली? Pregnancy is a long-term journey. It's about 9 months plus beyond when she's taking care of her child. So there is psychological health, there is sexual health, there is physical health, there is mental health, plus there is social health. So much of health. So much of things. So what I say, she needs a friend, she needs people to talk to. It's very good when she can have a past experience from a mother, from a mother-in-law, from a sister-in-law, from sister. But please do not compare your journey with others' journey. उनकी जर्नी, उनकी प्रेगनेंसी, उनकी डिलीवरी डिफरेंट होती है, आपकी अलग है. आपके डॉक्टर आपको डिफरेंट दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे, उनके डिफरेंट. तो कभी भी दो जर्नी को हमेशा कंपेयर नहीं करना चाहिए. एंड लिसन, बार बार मैं ये कहती हूँ, लिसन टू गायनेकोलॉजिस्ट. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गूगल यूनिवर्सिटी को मत फॉलो करो कभी भी दवाई के मामले में या किसी गाइडेंस के मामले में. आजकल हम सारे गायनेकोलॉजिस्ट, वी लव टू टॉक टू द पेशेंट, वी लव टू लिसन टू देम. तो प्लीज हमसे बात करो, we'll sort it out in every possible way. Changing in healthcare world. Yes. People are very receptive now. Yeah. Doctors are actually here for you. You need to talk to them, but Yeah. you need to come out of your comfort zone and Yeah. talk to them. I think मुझे एक important बात पूछनी थी. I get this call here and after. Sexual health के बारे में बात करते हैं in pregnancy. आपने sexual health की बात की थी. Is sex recommended in pregnancy? Can you tell me? Unless and until you do not have complication like placenta previa or accreta or bleeding PV or any kind of cervical polyp or any other kind of complications, sex is not contraindicated in pregnancy. It has to be mutual, it has to be with patient's consent, it has to be with patient's demand, both of them, and condoms should be used during this pregnancy. तो आई थिंक लेडीज जो उन्होंने बताया है कि किस किस इंडिकेशन में आप सेक्स नहीं कर सकते, या अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ के आपको ये डिसीजन लेना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वी शुड नो दीस थिंग्स. You know, I always tell my patients, आप जब भी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलो, चाहे मुझसे किसी से, उनकी बात करो यार. मेक अ पेपर एंड अ नोट. घर से सारे क्वेश्चंस लिख के लाओ, बैठो, आराम से डिस्कस करो, सारे क्वेश्चंस पूछो. दैट बी मच बेटर. घर जाके बहुत सारी चीजें याद आती है, उससे बेटर आप नोट बना के लाओ, देन यू आस्क. डेफिनेटली. आई थिंक वेस्टर्न वर्ल्ड में ये बहुत कॉमनली प्रैक्टिस होता है. They actually get the list of their questions and they get answered. Even we are ready to answer. We as doctors, we are always ready to answer questions. Okay, so Dr. Aishwarya, I wanted to ask, post pregnancy एक अलग तरह का डिप्रेशन है women. So Dr. Aishwarya, I wanted to ask one thing. पोस्ट प्रेगनेंसी वेट मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? आपने मुझे प्री का बता दिया कि प्री कंसेप्शन में आपसे कंसीडर कर रहे हैं, गायनेकोलॉजिस्ट और वेट लॉस ले रहे हैं, पर अब प्रेगनेंसी ओवर हो गई है. नाउ वी हैव द बेबी, हम उसे फीड भी करना है, हमें वी आर वर्किंग आल्सो. हाउ डू वी मैनेज द वेट? वेट लॉस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से ना वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अगर आप बहुत एक्सेसिव वेट गेन कर लेती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वेट लॉस उतना ही डिफिकल्ट होगा. वेट गेन 9 मंथ में होता है, वेट लॉस भी एक दिन में नहीं होगा. इट टेक्स अ कोर्स ऑफ 9 months to 1 year. लेकिन हमारे इंडियन सिनेरियो में ना वो जो घी पिलाने का कल्चर है ना, दैट हैज टू बी स्टॉप. हमें एक चीज समझना पड़ेगा, घी इज जस्ट, घी बुरा है कि कार्बोहाइड्रेट बहुत बुरे हैं? नहीं, नथिंग इज बैड. Excess of anything is bad. Excess of protein is bad. Excess of fat is bad. Excess of carbohydrate bad. You are actually not about protein. I think protein को लेके लोग आजकल बिल्कुल पागल हो गए. You know, class 4 के बच्चे खा रहे हैं. क्लास 4 के बच्चे को फूड पिरामिड बताया गया है. सिंपल. फूड पिरामिड बहुत इजी चीज है जो आपको याद रह सकता है. वही फूड पिरामिड आपको डिलीवरी के बाद फॉलो करना है, वही फूड पिरामिड आपको डिलीवरी के समय फॉलो करना है, वही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉलो करना है. तो वो बहुत, उसमें सबसे ज्यादा है हाइड्रेशन. आप 8 ग्लास आप पानी पीजिए, आप कार्बोहाइड्रेट लीजिए लेकिन कम अमाउंट में लीजिए, क्योंकि आप उस समय इतनी एनर्जी बर्न नहीं कर रही है. अगर हम घी की बात करें ना, तो घी इज ओनली फैट. वो सिर्फ आपकी बॉडी में जाके एक्यूमुलेट होता है रॉन्ग प्लेसेस पे, आपके बम्स पे, आपके थाइस पे, आपके पेट पे. फिर आप उसको वेट लूज नहीं कर सकते इजीली, क्योंकि आप उस समय जिम नहीं जा रहे एक्सरसाइज करने के लिए. अब अगर आप पूछो कि जिम कब जाना चाहिए डिलीवरी के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नॉर्मल हो या सिजर, आफ्टर 6 वीक ऑफ डिलीवरी. तो पता है हिंदुस्तान में पुराने जमाने में भी 40 दिन की जापा टाइम माना जाता था. आज भी मानते हैं. वही 40 दिन का टाइम है जिसके बाद आपकी एक्टिविटी है, जैसे आपका जिम जाना है, स्विमिंग है, आप सब कुछ गेन कर सकती हैं. और उस समय आप अगर अपनी डाइट अच्छी रखती है, आपके लिए वेट लूज करना बहुत इजी होगा. डाइट प्लस एक्सरसाइज. आई थिंक डाइट एंड एक्सरसाइज इन एवरी केस इज वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे आप प्रेगनेंसी में हो, प्रेगनेंसी के बाद हो, हम ये भूल जाते हैं. हमें लगता है कि यार अभी कर लेंगे, अभी ये खा लेते हैं, अभी वो खा लेते हैं, हम टेस्ट में रह जाते हैं. बट बेसिकली हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट. हेल्दी फूड इज ऑल्सो टेस्टी.
इट्स जस्ट दैट आपको ये जानना है कि जब आप दाल बना रहे हो आपको बिना छौंके की दाल लेनी है। आपको उबली हुई दाल लो, आप वो लीजिए। आप राइस को ब्राउन राइस से कन्वर्ट कर लीजिए, आप अपने आटे को ज्वार से कन्वर्ट कर लीजिए। खाना वही खाना है बट उसको हेल्दी वे में कन्वर्ट करना है। I think Dr. Aishwarya said it very rightly. What you eat actually decides your fate. कि हम कैसे रहने वाले हैं post pregnancy, and that can actually do a lot of things for you. आप mentally बहुत strong हो जाते हो when you have a तो पता है आधे से ज्यादा women डिप्रेशन में इसलिए होती है क्योंकि they don't look the same. They cannot fit into the same they clothes. actually are in depression. उनके हस्बैंड्स को वो अच्छी नहीं दिख रही होती, अपने फ्रेंड्स के बीच में नहीं अच्छी लग रही होती, उनको कपड़े फिट नहीं आ रहे होते हैं। तो अगर आप अपने ऊपर प्रेगनेंसी के दौरान से ही काम करेंगे आपके लिए लाइफ बहुत इजी होगी, आगे भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, एवरीवेयर इट विल बी वेरी इजी। मान लीजिए आपने 10 किलो वेट गेन किया है, 12 किलो वेट गेन किया है, 10 किलो तो आप डिलीवरी के तुरंत बाद शेड कर सकती हैं। टाइटनेस आपकी बॉडी में आ जाएगी विद टाइम विद एक्सरसाइज। अगर लेकिन आपने 20-25 किलो अगर गेन कर लिया है इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, सो यू हैव टू सी व्हाट यू ईट। I really like that point. I think exercise बहुत important है, डाइट में आप क्या खा रहे हो बहुत जरूरी है। So I think ऑडियंस या पेशेंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है सिजेरियन और नॉर्मल में क्या फर्क है, उनकी एक्सरसाइज में क्या फर्क है, या वेट शेड में क्या फर्क है? कैन वी हैव अ लाइट ऑन दैट? दिस इज अ मोड ऑफ डिलीवरी, चाहे वो नॉर्मल हो या सिजेरियन हो। इट्स अबाउट द सेफ्टी ऑफ द बेबी एंड द मदर। कोई डिफरेंस नहीं है इन द मोड ऑफ डिलीवरी। अगर आप बात करो नॉर्मल डिलीवरी जिसे हम वजाइनल डिलीवरी भी कहते हैं, दैट इज थ्रू द वजाइना। सिजेरियन जिसे दैट्स डन थ्रू द एब्डोमेन। इट इज मोस्टली सिजेरियन सेक्शन इज डन लुकिंग एट द सेफ्टी ऑफ द मदर एंड द बेबी। जहां तक आप वेट लूज करने की बात कर रहे हो या ड्यूरिंग एक्सरसाइज की बात कर रहे हो, नॉर्मल डिलीवरी वाले पेशेंट को एक्सरसाइज ज्यादा करनी पड़ती है, बिकॉज जब आपका बेबी वहां से आता है, एटलीस्ट अगर मैं एवरेज 3 kg बेबी का साइज मान लूं, तो वजाइना इज एन इलास्टिक ऑर्गन। वो वहां से लास्ट होता है, चीजें रिलैक्स होती है, फिर बेबी बाहर आता है, तो पेरिनियम मसल का लूज होने के बहुत चांसेस है। तो देयर इज अ एक्सरसाइज कॉल्ड कीगल एक्सरसाइज, जो हम सिखाते भी हैं पेशेंट्स को। सून आफ्टर डिलीवरी आप करना शुरू करो, क्योंकि उस समय आपके मसल्स टेंडर होते हैं। अगर आप उस समय एक्सरसाइज करोगे तो फायदा आपको ज्यादा मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात है आज भी इंडियन पेशेंट्स ये नहीं फॉलो करते हैं। कीगल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट हेल्प्स यू, जो आपको एडवांस एज में जाके जो आपको इनकॉन्टिनेंस यूरिन का होता है कि आप यूरिन रोक नहीं पाते, ये सब चीजों में हेल्प करता है। तो आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी एक्सरसाइज ज्यादा जरूरी है। मुझे इतने कॉल्स आते हैं, इतने पेशेंट्स कॉल करते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस पोस्ट प्रेगनेंसी क्यों हो रहा है? आई थिंक शी हैज हाईलाइटेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज करने के लिए आफ्टर द डिलीवरी, पर हम सुन नहीं रहे। सिजेरियन या नॉर्मल दोनों में, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया डॉक्टर तनु, एक्सरसाइज आप कर सकते हैं बट आफ्टर 40 days, दैट मींस आफ्टर 6 week ऑफ डिलीवरी, जिसे हम जापा कहते हैं। जिसे हम जापा कहते हैं। ठीक है, सो जापा में एक्सरसाइज नहीं करनी है, डाइट पे तब भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि जापा का टाइम चल रहा है तो कुछ भी खाते जा रहे हैं। प्रोटीन, कार्ब्स एक बैलेंस डाइट में लो, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से प्रॉपर डाइट चार्ट लो। न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं उनके पास सर्टिफाइड, कोई इशू नहीं आएगा। दे कैन एक्चुअली प्लान द वे यू वांट टू शेड योर वेट एंड पुट ऑन अ गुड मसल वेट। कीगल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर ईश्वर ने बहुत बार हाईलाइट किया है। आई थिंक लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। विमेन हेल्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर ईश्वर। हमने प्रेगनेंसी की बात की, हमने पोस्ट प्रेगनेंसी की बात की। अब एक ऐसी वुमेन है जो मेनोपॉज पे आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनकी, मेंटल, फिजिकल, द वे दे लुक। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? मेनोपॉज के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये ना ब्रेकअप टाइम चल रहा होता है, दे आर ब्रेकिंग अप विद देयर हार्मोन्स। सो ब्रेकअप टाइम कितना इमोशनल टाइम होता है ना, जैसे आपका बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो रहा हो, सेम थिंग। आपका जब ब्रेकअप अपने हार्मोन से होता है, इट्स अ वेरी इमोशनल टाइम फॉर द पेशेंट। शी अंडरगोज टू मच चेंजेस इमोशनली, फिजिकली, सेक्सुअली, मेंटली, सेम थिंग। बट दिस इज अ डिप्रेसिंग टाइम। इसमें उसका ब्रेकअप उसके हार्मोन, उसका प्राइम हार्मोन है एस्ट्रोजन, उससे हो रहा है। एंड एस्ट्रोजन एंड कैल्शियम आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो सोचो उसकी बॉडी से कैल्शियम भी जा रहा है, उसकी बॉडी से एस्ट्रोजन भी जा रहा है। यस, so at this time I do advise her to take certain kind of supplements. Supplements we'll talk about, but exercise is required. I'll always ask them to avoid टी या कॉफी आप कम मात्रा में लें, बिल्कुल आप जितना कम कर सके। मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है, हाँ, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है, किसी किसी का कम भी, किसी किसी का बढ़ भी जाता है, तो इट्स लाइक बॉडी वाइज। एंड दूध आप बढ़ा लें अपनी डाइट में, हेल्दी डाइट कर लें, एक्सरसाइज आप प्रिपेयर ना रोकें, बुक्स पढ़ें, योगा करें, एंड कीप योरसेल्फ हेल्दी, फिट, and do seek for help whenever it is required, whether it is mentally or psychologically. So menopause से I think बहुत ही गंदा फेज एक पेरीमेनोपॉज का है, जहाँ पे आप ट्रांजिशन में हो। अभी आप फुली मेनोपॉज स्टेट में आए नहीं हो। इरिटेबिलिटी, योर ट्रांजिशन फ्रॉम द हॉर्मोन्स, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम वेयर यू एक्चुअली शुड कनेक्ट टू फ्रेंड्स हु आर आल्सो गोइंग इन द ट्रांजिशन फेज। एंड मुझे डॉक्टर ऐश्वर्या की बात बहुत सही लगी कि मेनोपॉज की क्लिनिक होनी चाहिए। Menopause clinic should be there where these women can come, discuss their problem, take proper supplements,
क्योंकि कितनी बार दे डोंट नो whom to see, गायनेकोलॉजिस्ट को जाए भी दिखाने या नहीं जाए, 3 महीने से पीरियड्स नहीं आया, दे डोंट इवन नो कि मेनोपॉज इज अ टाइम जब आपको 1 साल पीरियड बन रहे हैं, उसको मेनोपॉज कहते हैं. उनके लिए 3 महीना, दे हैव नो नॉलेज अबाउट इट. सो यस, वी नीड मेनोपॉज क्लिनिक इन इंडिया. मेनोपॉजल क्लिनिक बहुत जरूरी है, मेनोपॉजल ग्रुप्स बहुत जरूरी है. गुड़गांव में एक ग्रुप है विच इज कॉल्ड एज ब्लूम by menopause, but started by a very nice lady, would not name it right now, but I think this is very important. Every city, every place should have these kind of societies, so people can actually interact with each other and solve their problems. They can seek help with gynecologists and with counselors, not even gynecologists but counselors भी जरूरी है इसके लिए, क्योंकि फैमिली को भी तो एक्सेप्ट कराना है ना कि ना तो women is changing, वो इरिटेबल हो सकती है, वो मूडी हो सकती है, वो सब चीजें उनको भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. So I think menopause is a tough time for women. They need help. Certain food replacements, certain diet replacements, certain I would agree. multivitamin definitely help. You know, CoQ enzyme is a very important enzyme during fertility, during Yes. you know, whatever time, including menopause. It really helps. It's a very strong antioxidant, which is required in the diet as well as in your supplements as well. So do you recommend collagen as well also? For both the sexes, but for women we are talking, तो women के बारे में बात करते हैं. So basically, Dr. Aishwarya, do you recommend collagen at all? And what age do you see a woman should start? As early as possible. What I see, collagen is an upcoming brand. It is an upcoming thing in the market, and marine collagen is a rage. I see young girls taking it. It is safe. It is FDA approved. It is seen that as early as you take, the results are as better. जितना आप लेट लोगे उतना लेट रिजल्ट है. आप जितनी जल्दी शुरू करो, आपको फ्लेवर्ड है, आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको अब तो स्टीविया के साथ भी आ रहा है with very high quality. It is sugarless, so yes, it is recommended to the people who can take it, and it's very good. ना चाहिए कैसे भी. So collagen एक प्रोटीन है बेसिकली. अगर आपको वेट लूज भी करना है तो आप 4-4:30 बजे एक गंदा कुछ भी मार्केट से लेके खाने के लिए या कुछ भी कार्ब खाने से अच्छा एक प्रोटीन ले लो. It's very easy to take. I mean, just a scoop in the water, a sachet to open. It is that tasty nowadays. It is sugar free also. You could sprinkle it in your coffee, make a smoothie out of it. The recipes are endless. It's on YouTube. It's very amazing. Flavors are there. Different flavors are there. So I believe collagen अब gym and fitness athletes में भी बहुत ज़्यादा आ गया है. Women को तो obviously it is required. Men are also taking it because obviously men are also aging. The collagen is also declining in them. So it's for neutral for both the sexes. And with that, yes, collagen is a big yes for me also. So next, I think Dr. Aishwarya, I would want to discuss women as a whole. आप क्या एक message देना चाहते हैं? As a women को क्या message देना चाहते हैं? To every woman, every girl out there, I'll say, stay educated, stay healthy, stay safe, and know about yourself, know about your health. Do not Google yourself on WhatsApp. Do not take advice from your sister, your friend. Please seek a gynecologist. Seek annual health checkup. There is no shame attached to seeking a doctor for sexual health. And I will request everybody to seek a doctor on time so we can avoid teenager pregnancy, we can avoid menopausal complication, we can avoid everything that is not wanted in the society. So that's what, just be educated and be happy and healthy. And be financially independent. I would say that. Definitely, India is Everyone should be independent. Financially, psychologically, emotionally, every time. I agree to it. And I wanted to ask one thing. Sexual health को लेके लोग अभी भी बिल्कुल ओपन नहीं हैं. Especially women. मतलब मुझे लगता है कि एटलीस्ट मेट्रो सिटीज में तो लड़कियां फिर भी बात कर रही है, they're seeking the help. But अभी भी टायर 2 में लोग बात नहीं करते. What is your take on sexual? Because they don't know anything about sex. Now, for them, it is a man's world. It's a man's thing. They have no idea that, you know, women are equally has to be aware of their sexual health. So education is required. That is where education plays an important role. That they need to know about themselves. They need to know what they like, what they don't like, and to have the voice, they need to be educated. Otherwise, it'll be very tough. India is a vast country. You know, With diversity. It's diversity. हर तरह के लोग हैं, हर इकोनॉमिकल स्टेट के लोग हैं, हर मेंटल स्टेट के लोग हैं. सोशल भी अलग अलग है, रिलीजियस अलग अलग है. यस, आप कुछ चीजें आपके रिलीजन में सही नहीं है, कुछ है. तो when we talk to a doctor, it will be much easy platform for them to talk and understand their sexuality. So main thing is be educated so that you can talk to your doctor. And please do not Google anything about yourself. It is not safe. It is just. I would highly say that Google does not teach you anything. ChatGPT भी नहीं कर पाएगा. जो डॉक्टर बता सकता है अपने एक्सपीरियंस से, उसकी बात बिल्कुल अलग है. वो ट्रीटमेंट तक गूगल करके आते हैं, which is not right.
I know. I mean, Google treatment से क्या होने वाला है? जो experience एक 15 साल के डॉक्टर को है, वो Google क्या बता पाएगा? True. I would totally agree with it. I think with this amazing conversation that we both had on women health, a physician, a gynecologist about pregnancy, post-pregnancy weight loss, diabetes, and menopause, I would like Dr. Aishwarya, please, to conclude this session. It was such a nice session, talking about two women talking about women health, and we are here to tell everybody to be confident. Just accept yourself, accept your disease, see a doctor whenever possible. Do not Google. Again, I'll repeat the same thing. Do not WhatsApp each other your problem. Do not take the same medicine what you have taken before, and just be happy and healthy. And that's what we all want. Diet karo, exercise karo, please. Be healthy, be fit. When women is fit, she's confident, she can head the whole house and she can work too. Healthy women can only make a healthy society. Trust me. So with that, I think this session should be concluded. We should say thank you to... so much. I am Dr. Tanu. I'm Dr. Aishwarya. We love shooting with Infinity Media 51. Guys, they're very, very, very professional. They really, really help with the setup and everything. They're very particular about the hair also. Oh yes, they're particular about the looks also. They really, really help you with everything. So it's my very much gratitude to them. Thank you so much.